Confusions is part of mind. Convictions is part of intellect. That's a big difference. But when your mind is in a confused state, then your all knowledge is of no use, because mind will take over. It will cover up, hover up the intellect, and then you are lost in the wariness and craziness of your mind. Like many people know they shouldn't drink, but they do. Many people know they shouldn't lie, but they do. Many people know they shouldn't do adultery, they do. Many people are kleptomaniac. They don't want to be that, odd stealer, whatever they'll see. A kleptomaniac is a person who will just pick up anything and just pocket it. Rich people, successful people, they have this. Why do? They don't know. They know stealing is bad, yet they do. It's the mind which has shrouded the intellect. And generally people are not trained to have a clear mind. No school, no college, no university is doing this job. So I am not surprised when young students in Kota are committing suicide. In colleges, in engineering colleges, medical colleges, students because of the pressures are committing suicide. They know it is wrong to do it, yet they are doing it. Why? They don't have a sorted mind. They were never exposed to this idea. And our government still think that yoga is only for Hindus, whereas yoga is for humans. So if you are a human, yoga is for you. If you are not human, then of course it's not for you. And mind you, yoga is not just asanas, much more than that. Yama, niyama, asana, pranayam, dharana, dhyana, samadhi. This is an eightfold path. Just to clear the mind. One who has a clear mind alone can afford to have a clear intellect. And only a person with a solid intelligence can understand these Vedantic things what I'm teaching. So I need very super intelligent people to understand what I am saying. If your mind is in a confused state or childish or emotional fool or emotional baggages or diseases of the mind are there, you are not fit to be a student of Vedanta then. It's the highest knowledge which can be imparted onto any human being. But you have to have that level of intelligence. And unfortunately, people don't have it. Because they're far away from Dharma. And sometimes their own prarabdha, their own destiny is so bad that it stops them to meet a master who could clear the way or path for them. And on the contrary, they begin to fight and hate and criticize the awakened master. Strange, no? Very strange. So बुद्धि को जो जानता है, मन को जो जानता है, वो जानने वाला चैतन्य है. तो तुम्हारे मन बुद्धि को तुम जानते हो, इसलिए तुम आत्मस्वरूप चैतन्य हो. और परमात्मा का लक्षण सत चित आनंद व्यापक, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. क्या तुम ये कहोगे वो सत्य नहीं है, या ये कहोगे वो चैतन्य नहीं है, या ये कहोगे वो दुख रूप है? कोई मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, क्या वो ये कहेगा कि मैं जिस ईश्वर को मानता हूं वो जड़ है, वो दुख है? हाँ, ये है कि वो हर मजहब में परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं है. कई मजहबों में परमात्मा उनका बहुत गुस्सैल है, गुस्सा हो जाता है. तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, नरक में डाल दूंगा. वो एक अलग बात है. The concept of what God is, I would say the way scientifically, logically it has been explored by our sages and rishis in Bharat
The whole world is yet to meet that height. So no wonder there is a great interest on the part of people to know what this Vedanta is. And it's not knowledge about God, it's knowledge about your own self. If you don't know who you are, how would you know who God is? अभी कोई आएगा कहेगा भगवान ऊपर है, तुम कहोगे अच्छा जी होएगा। कोई कहे नहीं भगवान तो नॉर्थ पोल में रहते, तुम कहोगे अच्छा जी। कोई कहे नहीं भगवान नीचे रहते, तुम कहोगे मान लेते अच्छा जी, क्योंकि कोई सवाल थोड़ी करता है। कोई कह रहा है वो आकार है, लोग कहते हैं अच्छा जी। वो कह रहे कृष्ण है, राम है, शिव है, बोले अच्छा जी। बोले नहीं निराकार है, बोले अच्छा जी। तो अच्छा जी कहना गधे ने, अब सबको ही अच्छा जी बोल रहा, ढूंढ थोड़ी रहा है कोई। बिना जाने बिना खोजे लोग मान लेते हैं ये भगवान है, और बिना जाने और बिना खोजे वो ये भी मान लेते मैं जानता हूं कि परमात्मा क्या है। तो ऐसे मूढ़ को कोई जना ही नहीं सकता जिसने जानने से पहले मान लिया कि मैं जानता हूं। तो भगवान करता है, सृष्टा है, करता है, धरता है, हरता है, मान लिया लोगों ने। कैसे ये नहीं मालूम। तो जानना और मानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और मैं ये कहती हूं मानते मूर्ख हैं, जानते बुद्धिमान हैं। जैसे एक ने कहा भगवान ऊपर है, और मुझे सपने में वो आए थे और उन्होंने कहा कि भगवान मैं हूं और मैं ऊपर रहता हूं, मैं भगवान हूं और मैं ऊपर रहता हूं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान ऊपर है और उन्होंने मुझे बताया है। दुनिया ने मान लिया, दुनिया ने मान लिया। एक ने कहा मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच रहा था भगवान है या नहीं, और भगवान मेरे सामने आके खड़े हो गए और उनके 4 हाथ थे और सिर पे मुकुट था और गले में माला थी। तो सुनने वाले ने मान लिया, हाँ होगा ऐसा। तो बोले मैं जानता हूं, मेरी बात मानो। मानो कहते हैं सब, जानो तो कोई कहता नहीं, कोई माई का लाल नहीं बोलता कि जानो। जानने में अक्ल लगेगी, अक्ल है नहीं। और लोगों के पास फुर्सत कहां है कि वो जाने कि ईश्वर क्या है। अब कृष्ण गीता में कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में जानता है, सबको मुझ में जानता है, वो मेरे से कभी अलग नहीं, मैं उससे कभी अलग नहीं। कोई नहीं पूछ रहा कैसे। मैं तुम्हें कहूं अमित कुमार यहां पे हाथी खड़ा है, और अगर तुम अपने बाप के बेटे हो तो तुम्हें दिख जाएगा। अब कौन कहेगा मैं अपने बाप का बेटा नहीं, तो क्या कहेगा, हाँ वो तो सूंड भी हिला रहा है और गुरुजी वो आपको प्रणाम भी कर रहा है। हाँ कहना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने बात ही ऐसी कह दी, हमने बात ही ऐसी बोल दी। वो याद है ना राजा की कहानी। राजा के पास एक टेलर आया, उसने कहा हुजूर मैं आपके लिए ऐसी ड्रेस बना सकता हूं जैसी आज तक दुनिया में किसी ने न पहनी हो, पर मुझे उसे बनाने में 1 साल लगेगा, और मुझे 2 गड्ढे भर के सोने की तारें, 5 गड्ढे भर के चांदी की तारें, 10 गड्ढे मोती, 4 गड्ढे हीरे और कुछ इंस्ट्रूमेंट। 1 साल लगेगा, पर मैं ऐसी बनाऊंगी दुनिया के किसी आदमी ने न पहनी हो। ठीक, सब दिया। अब उसने कहा जब तक बना ना लूं तो आप भी नहीं आ सकते। ओके, साल बीतन, बुलाओ उसको। ड्रेस तैयार हो गई? बोले बिल्कुल।
हो गई। आप तैयार हो पहनने को? बिल्कुल। कह रहे फिर आप सुबह स्नान करके तैयार रहिएगा, मैं ड्रेस लेके आऊंगा। ठीक है। जाते जाते वो पीछे मुड़ के कहता राजन, पर एक बात मैं कह दूं, जो अपने बाप का बेटा होगा उसी को ये मेरी ड्रेस दिखाई देगी, जो अपने बाप का नहीं है उसको दिखाई नहीं देगी। राजा कहता हाँ हाँ लाओ लाओ। तो सुबह वो आया तो उसने दोनों हाथ यूं कर रखे थे और किसी को उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर कोई कुछ बोले नहीं। बोले तो इज्जत गई। आज सब मंत्री आपस में एक दूसरे को देखें, पूछ भी ना पाए कि तुम्हें दिख रहा है। राजा मंत्रियों को देखे कि इनको दिख रहा है। एक मंत्री बोला आहा हा हा हा, दूसरा बोला वाह 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 वाह, तीसरा बोला अकथनीय, चौथा बोला अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम, पांचवा बोला ऐसा तो आज तक हमने देखा नहीं, शायद इंद्र ने भी न पहना हो महाराज। अरे कुछ नहीं उसके हाथ। और राजा खड़ा है अलफ नंगा, और इस दर्जी ने उसको ऐसे पहनाया ना जैसे कोई ड्रेस पहनाए किसी को। तो कहते राजन बांह ऊपर करो। आहा वाह वाह वाह। एक मंत्री बोला, मंत्री तुम्हें पता ना पीछे लग्गू चापलूसिए रिंटू, बोले महाराज इसके साथ तो हाथी की सवारी होनी चाहिए, पूरा राज्य देखे आपको। मैं कहा तैयारी करो। अब राजा अंदर भी पर बातें हो रही, सब तारीफ 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 तारीफ। तो राजा चला गया नंगा हाथी पर, ये सोचते हुए कि कुछ तो है जो मुझे नहीं दिख रहा, और गुस्सा आ रहा अपनी मां पर, झूठी धोखेबाज, मेरे पिता को धोखा दिया। और वो नंगम नंगा जाके हाथी पर बैठ गया। और ये चर्चा पूरे शहर में थी, तो सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए, रास्ते में हजारों की भीड़ है, हाथी आया, हाथी पर राजा है, सब लोग देख रहे हैं। सबको मालूम था कि जो अपने बाप का नहीं उसको दिखेगी नहीं। सब कह रहे वाह वाह आहा क्या पोशाक। एक 6 साल का बच्चा अपने बाप के कंधों पे चढ़ा हुआ था, वो भी देख के उचक उचक के देखना चाह रहा है। उनने देखा कुछ तो दिखा नहीं, जोर से चिल्लाया अरे राजा तो नंगा है, पापा राजा नंगा, पापा राजा नंगा। दूसरे बच्चों ने राइम शुरू कर दी, सारे बच्चे चिल्लाने लग गए राजा नंगा राजा नंगा राजा नंगा। और माँ बाप उनके मुंह बंद करें और बच्चों को तो कौन ही चुप कराए। परमात्मा के विषय में लोगों की धारणा भी बस ऐसी ही है। सब कहते हैं हमें पता है भगवान क्या है, पता किसी को भी नहीं। बोल कोई नहीं रहा कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो लोग कहेंगे कैसा पापी है तू भगवान नहीं मानता। और नास्तिकों और आस्तिकों के झगड़े देखो कैसे चल रहे हैं। आधे कह रहे भगवान है, आधे कह रहे नहीं है, आधे कह रहे कैसे हो सकते, आधे कह रहे कैसे नहीं हो सकते। लड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखा रहे। मजहब वाले दूसरे मजहब को नीचा दिखा रहे, बोले हम जानते, बोले नहीं तुम नहीं जानते। सारी दुनिया में लड़ाई इन धर्मों की वजह से, जबकि धर्म वो धर्म है भी नहीं। धर्म एक ही होता है, सत्य, और सत्य बदलता नहीं है। तो सत्य को या तो आप जानते हो या आप नहीं जानते हो, बाकी तो मानते रहो। 300-400 मान्यताओं वाले मजहब चल रहे हैं इस दुनिया में, बिना ये जाने कि परमात्मा क्या है।
तो ऐसे में सनातन पुरातन इस ज्ञान को उपनिषद गीता स्पष्टम स्पष्टम स्पष्ट बताती है कि परमात्मा सत चित आनंद व्यापक है। और कैसे है ये जानने के लिए किसी ज्ञानी गुरु के सत्संग में बैठो और जान लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई खास खास गुरु ही जान सकते हैं इसको, कोई भी जान सकता है, पर जानने की इच्छा हो तो। अगर नहीं है तो मानो, मानो और लड़ो, मानो और लड़ो। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो हुई है वो ये ईश्वर को मानने वालों ने तो करी हैं। ईश्वर को मानने वाले, पर ईश्वर को जानने वाले कितने, वो थोड़ा दिक्कत है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीति बिन होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जानोगे नहीं तो उसकी प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी तो उससे प्रेम कैसे होगा, प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी। तो लोगों की भक्ति ईश्वर को जाने बगैर हो रही, बताओ कितनी सच्ची, कितनी सच्ची कि गप है सिर्फ। I really hope and pray that people, before making any belief in their small heads, should understand, read Bhagavad Gita. This is a concise one. There is a larger one, there is a long commentary. This is the smallest one. It's just one shloka written in phonetic English. So shloka is English. And each word has been given the literal meaning, and then in one paragraph what it means in its depth. So I would say Gita should be your navigation manual for life, for dharma, for Ishvara, for God, for Atma, for death, for life, for karma, for prarabdha, for destiny, for so many things which I haven't yet spoken. It's a concise form of knowledge. And knowledge is that sun which will illuminate your life and mind and brain and intellect. So don't be a blinded person. Have your lights. Illuminate yourself. Know it. Don't believe. I am not for believing in God. I am for know God. So is Sri Krishna. So is Sri Guru Nanak. So is Kabir Sahib. So is Ravidas Sahib. Know it, not believe in it. Believing is for maybe in the beginning, where to go, what's the destination. But your journey finishes only when you walk the journey and you learn how to go about it. तो हमारे जो शास्त्र है ना, वो सब गुरुवाणी हो, गुरु नानक की वाणी हो, गीता हो, उपनिषद हो, ये आपको बताते हैं सोई सच्चिदानंद घन रामा। राम सच्चिदानंद है। राम सिर्फ एक शरीर नहीं है, राम सच्चिदानंद है। और उसको जानने के लिए आत्म अनुभव, सुख सुप्रकाशा, अपने आत्मा का अनुभव करना। करेंगे हम अनुभव आत्मा का, मिलेगा राम, क्योंकि राम और आत्मा दो है ही नहीं। कुछ बात समझ लगी? तो ये मानने का विषय नहीं, ये जानने का विषय है। और किसी और को थोड़ी जान रहे, अपनी हकीकत ही तो ढूंढ रहे हैं। जो ढूंढ लेता है वो मुक्त है, जो नहीं ढूंढता है वो बेचारा फंसा हुआ है।